Good morning, students. In the previous video, you have studied about dual nature of matter and Heisenberg uncertainty principle. Therefore, in order to explain the structure of atom, these two facts has to be taken into account. So Schrödinger in 1962, he developed a new branch of science called wave mechanics, also known as quantum mechanics. And in this branch of science, he proposed a mathematical equation called Schrödinger wave equation, which describes the behavior of a wave function associated with atomic particles. And the equation is as follows: d square psi upon dx square plus d square psi upon dy square plus d square psi upon dz square plus 8 pi square m by h square bracket e minus pe bracket close psi is equal to 0. Now in this mathematical equation, psi represents wave function, x, y and z they represents coordinates describing the motion of the particle, m means the mass of the atomic particle, h is the Planck's constant, E is the total energy of the particle, and Pe is the potential energy of the particle. So basically, Schrödinger, he proposed a mathematical equation in order to describe the wave character associated with the material particle. On solving this equation, we will be getting different values of psi for different values of coordinates, that is x, y and z. And since coordinates can be positive as well as negative, therefore we can get values of psi both positive as well as negative. Now psi, which represents wave function associated with the atomic particle, let us say electron. And we know that waves can't be localized. They do not have exact positions. So the main motive or main aim of Schrödinger wave equation is to go for the probability approach. That means हमें exactly position तो नहीं पता लगेगी, लेकिन हम एक probability find out कर सकते हैं कि हमें वो इलेक्ट्रॉन कहां पर find हो सकता है. And since probability can never be negative, probabilities are always positive. Therefore, instead of taking psi, it is preferable to use psi square. Now, what is the significance of psi square? What does psi square represents? Psi square is a probability factor. It describes the probability of finding an electron within a small space. That means probability of finding an electron within a small space is directly proportional to psi square. Higher the value of psi square, greater will be the probability of finding an electron. Lower the value of psi square, lower will be the probability of finding the electron. And when the value of psi square is 0, that means probability of finding an electron at that place is 0. तो बेसिकली psi square की हेल्प से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड किस रीजन में उसके फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है. Moreover, those regions in which the probability of finding the electron is maximum, they are known as orbitals. तो ऑर्बिटल्स हम किसे कहते हैं? ऑर्बिटल्स हम उन रीजन्स को कहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड जहां सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन के मिलने की. बिकॉज हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन तो लोकेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा रीजन ढूंढ सकते हैं जहां पर उस इलेक्ट्रॉन के मिलने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, और उस रीजन को हम कहते हैं ऑर्बिटल. तो उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हमें कहीं पर भी मिल सकता है. Now, using quantum mechanics and Schrödinger wave equation, a new model representing structure of atom was proposed, and which was named as quantum mechanical model of atom. And this model deals with the study of the motion of microscopic objects that have both wave-like and particle-like properties. Some of the important features of this model are summarized below. Number 1, the energy of the electrons in atom is quantized, जिसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो फिक्स्ड है. नंबर 2,
This model provides the most probable regions in the atom where there is a maximum probability of finding electrons. That means ये मॉडल हमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में भी बताता है जहां इलेक्ट्रॉन्स के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो दैट मीन्स ये मॉडल हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है। नंबर 3, an atomic orbital is described by a wave function psi, and since many wave functions are possible for an electron, that means many atomic orbitals are possible in an atom. तो बेसिकली क्योंकि ये मॉडल स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन पे बेस्ड है और साई जो सॉल्यूशन होता है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का उसकी कई डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, तो सिमिलरली एक एटम में कई डिफरेंट ऑर्बिटल्स हो सकते हैं जहां इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। नंबर 4, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट within an atom is proportional to the square of wave function, that is psi square. It is possible to predict the region within an atom by finding the value of psi square at different points where the electron will most probably be found. तो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन की हेल्प से हम psi की वैल्यू निकाल के psi square की वैल्यू निकाल के हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को लोकेट कर सकते हैं विद इन दी एटम। नंबर 5, a wave mechanical model provides 3 constants n, l and m, also known as quantum numbers, and these will specify the position, energy and orientation of the electron in an atom. Quantum numbers हम आगे पढ़ेंगे अभी। Number 6, the information about the exact shape of various atomic orbitals is provided by this model. ना सिर्फ ये हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा बल्कि ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में भी ये मॉडल हमें बताता है। नाउ नेक्स्ट इज क्वांटम नंबर्स। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी पर्सन को ढूंढना है तो आपको क्या क्या चाहिए? आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि वो किस कंट्री में रहता है, फिर उस कंट्री में वो कौन सी सिटी में रहता है, उस सिटी में किस स्ट्रीट में उसका घर है और उसके घर का नंबर क्या है। अगर आपके पास ये चारों चीजें होंगी तो किसी भी पर्सन को दुनिया में कहीं भी ढूंढना बहुत इजी है। सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास 4 नंबर्स होते हैं जिन्हें हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। देयरफॉर क्वांटम नंबर्स may be defined as a set of 4 identification numbers which are needed to have full information about various electrons present in an atom, that is to know about their location, energy, shape, orientation and spin are needed. So basically in short we can say these numbers are like the postal address of a particular electron in an atom. The names given to these quantum numbers are principal quantum number, which is denoted by symbol n, azimuthal, also known as angular or subsidiary or secondary quantum number, denoted by symbol L, magnetic quantum number, denoted by symbol m, and spin quantum number, denoted by symbol S. Now students, let's take an example. Students, आपका स्कूल डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, जिसमें एक किंडरगार्टन है, एक प्राइमरी ब्लॉक है, देन मिडिल ब्लॉक एंड देन सीनियर ब्लॉक है। और हर एक ब्लॉक में डिफरेंट क्लासेस होती हैं। जैसे सीनियर ब्लॉक में 9 to 12 क्लासेस, मिडिल ब्लॉक में 6 to 8 क्लासेस, प्राइमरी में 1 to 5th एंड लोअर क्लासेस किंडरगार्टन को बिलोंग करती है। एंड मोर ओवर हर एक क्लास आगे फर्दर सेक्शंस में डिवाइड होती है। लेट अस से +1A, +1B, +1C, so onwards. Similarly, इलेक्ट्रॉन्स जो शेल्स में रिवॉल्व करते हैं वो शेल्स आगे फर्दर सब शेल्स में डिवाइडेड होते हैं और उन सब शेल्स में ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी शेल सब शेल्स में स्प्लिट होते हैं और वो सब शेल्स आगे चलकर ऑर्बिटल्स में स्प्लिट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन किस सेल के कौन से सब शेल के किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है
उसके बारे में अगर हमने फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें इन सभी क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज का पता होना चाहिए। तो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। Symbol n, restrictions positive integers, range of values 1 to 3 up to infinity. That means प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए 1 से लेके इन्फिनिटी तक का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इसकी वैल्यू हो सकता है। एंड व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस? इट आइडेंटिफाइज शेल। ये शेल को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। अब शेल्स क्या हैं? बिकॉज जो एटम है, अब हमने पढ़ा है कि वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है एटम का। एंड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड स्फेरिकल शेल्स में रिवॉल्व करते हैं, और उन स्फेरिकल शेल्स को हम डेजिग्नेट करते हैं विद कैपिटल लेटर्स K, L, M, N एंड सो ऑनवर्ड्स। यानी न्यूक्लियस के अराउंड स्फेरिकल शेल्स प्रेजेंट होते हैं पर्टिकुलर डिस्टेंसेस पे, जिन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। अब कौन से शेल में वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस टाइम पे, उसको आइडेंटिफाई करने का काम करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर n की वैल्यू 1 है, दैट मींस उस शेल का नाम है K शेल। सिमिलरली L शेल के लिए n की वैल्यू 2 होती है, M शेल के लिए L की वैल्यू 3 होती है। तो न्यूक्लियस के सबसे पास जो शेल होगा उसकी वैल्यू 1 होगी, उससे जो दूर शेल होगा उसकी 2, और इस तरह से 3, 4 एंड सो ऑनवर्ड्स। तो सिमिलरली अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, इसका मतलब वो हमारा L शेल है। मोरओवर इट डिटरमिन्स साइज एंड एनर्जी ऑफ द शेल आल्सो। अब क्योंकि हमें पता है कि शेल जितनी पास होगा न्यूक्लियस के उसका साइज उतना ही स्मॉल होगा, और वो जितनी दूर होगा न्यूक्लियस के उसका साइज उतना ही ज्यादा बड़ा होगा, बिकॉज रेडियस इंक्रीज हो जाता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा शेल है, उसका साइज क्या है और उसकी एनर्जी क्या है। मोरओवर number of orbitals present in the shell can also be calculated, that means they are equal to the value of n square। अब एक शेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो सकते हैं वो n स्क्वायर के इक्वल होते हैं। यानी अगर हमारे पास n की वैल्यू 2 है तो 2⁻², दैट इज 4। इसका मतलब जो हमारा सेकंड शेल है उसमें मैक्सिमम 4 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। नंबर 2, एजीमुथल क्वांटम नंबर और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल L and restrictions are positive integers less than n and the values are 0, 1, 2 up to n-1. Total possible values are n। इसका मतलब L की जो वैल्यूज होती हैं वो 0 से लेके n-1 का कोई भी इंटीजर हो सकता है, जहां पर n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, which means L depends upon n। फॉर एग्जाम्पल इफ n इज इक्वल टू 1, यानी हमारा फर्स्ट क्वांटम नंबर है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर n की वैल्यू 1 है तो L की जो वैल्यूज पॉसिबल है वो 0 से लेके 1-1 यानी 0 ही पॉसिबल है। सिमिलरली व्हेन n इज इक्वल टू 2, सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L विल बी 0 to 2-1, that is 0 to 1। तो देयर आर 2 वैल्यूज पॉसिबल, 0 and 1, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक लेस। सिमिलरली व्हेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 3, तो L की जो वैल्यूज पॉसिबल हैं वो हैं 0, 1 and 2। एंड मोर ओवर अगर आप इनको ऑब्जर्व करोगे, आप क्या फाइंड आउट करोगे कि जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 था तो उस केस में L की सिर्फ एक ही वैल्यू है। जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो उस केस में L की हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, 0 and 1। और जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास 3 था तो उस केस में L की हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, 0, 1 and 2। तो बेसिकली कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं L की, वो क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती हैं। तो जितने क्वांटम नंबर होंगे उतनी ही वैल्यूज पॉसिबल होती हैं, और वो जो वैल्यूज होंगी वो 0 से लेके n-1 तक एग्जिस्ट करेंगे। What is the significance of azimuthal quantum number?
तो एल का सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि हर एक शेल आगे फर्दर सब शेल्स में डिवाइड होता है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर उन सब शेल्स को आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। यानी एल की वैल्यू से हम सब शेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। इफ द वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू 0, अगर एल की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स वो सब शेल हमारा एस सब शेल है। सिमिलरली फॉर एल इज इक्वल टू 1, सब शेल विल बी पी, फॉर एल इज इक्वल टू 2 इट विल बी डी सब शेल, एंड फॉर एल इज इक्वल टू 3 इट विल बी एफ सब शेल। तो हम लोग एल की हेल्प से सब शेल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एन की हेल्प से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से शेल को आइडेंटिफाई किया जाता है, और एजीमुथल क्वांटम नंबर की हेल्प से सब शेल को आइडेंटिफाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब एन की वैल्यू 1 थी तो उस केस में एल की वैल्यू थी 0, और अगर एल की वैल्यू 0 होती है तो वो एस सब शेल होता है, और इस केस में उस सब शेल का नाम होगा 1s। 1 क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और क्योंकि s सब शेल सिर्फ फर्स्ट क्वांटम नंबर फर्स्ट शेल में ही नहीं होगा, वो सेकंड शेल में भी हो सकता है, वो थर्ड शेल में भी हो सकता है, तो इसलिए जब हम सब शेल्स के नेम लिखते हैं तो उन नेम्स में हम साथ में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी मेंशन करते हैं, यानी 1s। सिमिलरली व्हेन क्वांटम नंबर वाज 2, इन दैट केस एल की वैल्यू जो थी वो थी 0 एंड 1, तो 0 के लिए s सब शेल होगा जिसका नाम होगा 2s, 2 फ्रॉम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड सिमिलरली जब l की वैल्यू 1 थी तो उस केस में जो सब शेल उसका नाम होगा 2p। नाउ व्हेन n इज इक्वल टू 3, l वाज 0, 1 एंड 2, और 0 के लिए s, 1 के लिए p और 2 के लिए d, और इन सब शेल्स के नेम होंगे 3s, 3p एंड 3d, क्योंकि ये थर्ड शेल को बिलोंग करते हैं। Moreover, the energies of the various subshells in the same shell are in the order of S, which will be less than P, which will be less than D, which will be less than F। मतलब कि अगर सेम शेल के जो सबशेल्स होते हैं, जैसे थर्ड शेल के 3 सबशेल्स थे, 3s, 3p एंड 3d, तो इसमें 3s की एनर्जी सबसे कम होगी, 3p की 3s से ज्यादा होगी, और 3d की 3p से भी ज्यादा होगी। यानी जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है एनर्जीज का सब शेल्स की, वो होता है s, p एंड d। So with the help of azimuthal quantum number we can identify subshell, we can find out the energy of that subshell, and also we can find out the orbital angular momentum of the electron present in that subshell। यानी उस सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी हम L की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ L ब्रैकेट L प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इनटू h बाय 2 पाई। यानी यहां पर अगर आप L की वैल्यू पुट करोगे तो आपको इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट हो जाता है। नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज magnetic quantum number, which is designated by symbol m, and its values are the integers which are between -l and +l। यानी m की जो वैल्यूज होती हैं वो l की वैल्यूज पे डिपेंड करती हैं, और m की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं, वो सारी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं जो -l से +l तक की होंगी। यानी -l से लेके +l तक जितनी वैल्यूज होंगी वो सारी m की वैल्यूज होती हैं। That means values of m will depend upon value of l। For example, जब l की वैल्यू 1 है तो m की जो वैल्यूज हैं वो -1 से +1 की सारी वैल्यूज होंगी, यानी -1, 0 एंड +1। सिमिलरली जब l की वैल्यू 2 थी तो उस केस में जो पॉसिबल वैल्यूज है m के लिए वो होंगी -2 से +2 तक की, यानी -2, -1, 0, +1 एंड +2। तो l की जो वैल्यू होती है उसी से हमें पता लगता है कि m की क्या वैल्यूज होंगी
L की वैल्यू अगर 1 है तो M की वैल्यूज -1 से +1, L की वैल्यू अगर 2 है तो M की वैल्यू -2 से +2, और अगर L की वैल्यू 3 है तो M की वैल्यू -3 से +3. इन शॉर्ट, whatever will be the value of L, M की वैल्यूज -L से +L तक की सारे इंटीजर्स होंगे. Friends, what is the significance of magnetic quantum number? यानी m जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है. Now students, we have studied about Zeeman effect in last video, and this effect states that when a single spectral line is placed in a magnetic field, it gets split into multiple lines. यानी एक जो सिंगल लाइन होती है अगर उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो कई मल्टीपल लाइंस में स्प्लिट हो जाता है. Now keeping this effect in the mind, it was proposed that electron producing a single line has several possible space orientations for the same angular momentum vector in a magnetic field. In short, it was observed that under the influence of magnetic field, each subshell is further subdivided into orbitals. यानी मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में हर एक जो सबशेल होता है वो फर्दर सब ऑर्बिटल्स में डिवाइड हो जाता है. यानी m की वैल्यूज हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताती हैं. हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो हमें शेल के बारे में बताती है. l की जो वैल्यूज है वो सबशेल के बारे में बताते हैं, और अब m की जो वैल्यूज है वो ऑर्बिटल्स के बारे में बताती हैं कि जो सबशेल है वो आखिरकार कितने ऑर्बिटल्स में डिवाइड होगा. तो केस नंबर 1, जब n की वैल्यू 1 थी तो l की वैल्यू 0 आई थी, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सबशेल आया था वो 1s आया था, और l इज इक्वल टू 0 के लिए जो m की वैल्यू आई है वो 0 आई है, जो a की सिंगल वैल्यू है. तो इसका मतलब इस केस में एक सिंगल ऑर्बिटल ही फॉर्म होगा. तो s सबशेल के लिए जो ऑर्बिटल आएगा उसका नाम भी s ऑर्बिटल ही होगा, यानी 1s ऑर्बिटल ही होगा. इन शॉर्ट, s ऑर्बिटल सिंगल होता है. नंबर 2, जब n की वैल्यू 2 थी तो हमारे पास l की भी 2 डिफरेंट वैल्यूज आई थी, एक 0 एक 1. 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग m की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ऑर्बिटल होगा वो भी सिंगल होगा और उसका नाम होगा 2s. लेकिन जब l की वैल्यू 1 थी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास 3 डिफरेंट वैल्यूज आई थी m की. 3 वैल्यूज का मतलब हमारे पास p सबशेल के केस में 3 ऑर्बिटल्स होंगे. तो p सबशेल 3p ऑर्बिटल्स में डिवाइड होता है, जो होते हैं px, py एंड pz, और इस केस में उनका नाम होगा 2px, 2py एंड 2pz. तो अगेन इन शॉर्ट, p सबशेल 3p ऑर्बिटल्स में डिवाइड होता है. केस थर्ड, जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 था तो हमारे पास 3 एजिमुथल क्वांटम नंबर्स थे, 0, 1 एंड 2. तो 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग 0, दैट मींस एक ऑर्बिटल है, दैट इज 3s. 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 वैल्यूज थी, यानी 3 ऑर्बिटल्स होंगे, 3px, 3py एंड 3pz. और जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 था और जब एजिमुथल क्वांटम नंबर 2 था तो उस केस में टोटल 5 डिफरेंट वैल्यूज आई थी हमारे पास m की, जिसका मतलब d सबशेल के केस में 5 ऑर्बिटल्स होंगे, और वो ऑर्बिटल्स होते हैं dxy, dyz, dzx, dx² - y² एंड dz². तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि s सबशेल एक ही ऑर्बिटल में डिवाइड होता है, यानी इसमें एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है. p सबशेल के लिए 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, और d सबशेल के लिए 5 ऑर्बिटल्स होते हैं. सिमिलरली जो f सबशेल होगा उसके लिए टोटल 7 ऑर्बिटल्स होते हैं. Last quantum number is magnetic spin quantum number, and it is designated with symbol s. Now students, when an electron is moving around the nucleus in an orbit, it is also spinning about its own axis. यानी जब वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होगा तो वो अपनी एक्सिस के अराउंड भी स्पिन करता है. एंड इट कैन स्पिन इन आइदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इट कैन स्पिन इन आइदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. या तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर सकता है या वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन
कर सकता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करता है तो उस केस में s की जो वैल्यू होती है वो होती है प्लस हाफ, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करता है इन दैट केस वैल्यू ऑफ s इज माइनस हाफ। तो s की 2 ही वैल्यूज पॉसिबल है, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ। प्लस हाफ व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज स्पिनिंग along its axis in clockwise direction and minus half when an electron is spinning about its axis in anti-clockwise direction. Moreover, जो पॉजिटिव स्पिन होती है प्लस हाफ उसके लिए हम अपवर्ड एरो से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जो स्पिन माइनस हाफ होती है उसके लिए हम डाउनवर्ड एरो से उसको रिप्रेजेंट करते हैं. Moreover, since electron is spinning around its axis, about its axis, it also has an angular momentum. So spin angular momentum of an electron can be calculated using this formula, that is mu s, that is spin angular momentum is equal to under root of s plus 1 h by 2 pi. So substituting the value of s, we can calculate the total spin angular momentum associated with the electron. We can also calculate total number of electrons present in any particular shell. Now, according to Pauli's exclusion principle, an orbital can contain maximum 2 electrons but with opposite spin. तो Pauli's exclusion principle क्या कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं बट विद अपोजिट स्पिन, यानी एक की स्पिन अगर प्लस हाफ होगी तो दूसरे की माइनस हाफ. इसका मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो एक शेल में जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे उससे ट्वाइस क्या होंगे, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो केस 1 जब n की वैल्यू 1 थी तो उस केस में हमारे पास एक ही ऑर्बिटल था 1s, तो इसका मतलब फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. जब n की वैल्यू 2 थी तो उस केस में हमारे पास टोटल 4 ऑर्बिटल्स थे, एक 2s का और 3 p के. तो टोटल 4 ऑर्बिटल्स है, दैट मींस टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे सेकेंड शेल के अंदर. सिमिलरली जब थर्ड शेल था उस केस में टोटल हमारे पास एक s का ऑर्बिटल, 3 p के ऑर्बिटल और 5 d के ऑर्बिटल्स थे, यानी टोटल 1 + 3 4, 4 + 5 9 ऑर्बिटल्स थे, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे 9 × 2 दैट इज 18, यानी थर्ड शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स है 18. तो इस तरह से हम किसी भी शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं वो भी हम क्वांटम नंबर्स की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं. Here is a question. Part 1. An atomic orbital has n is equal to 3. What are the possible values of L and M? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 3 और हमें डिफरेंट वैल्यूज L एंड M की फाइंड करनी है. एंड वी नो दैट कि जब क्वांटम नंबर आपके पास 3 हो प्रिंसिपल तो L की वैल्यूज 0 से लेके 2 तक पॉसिबल है, यानी n-1 तक पॉसिबल होती हैं. तो L की 3 वैल्यूज पॉसिबल है 0, 1 एंड 2. और L की वैल्यू से हम M की वैल्यू निकालते हैं. तो जब L इज इक्वल टू 0 था उस केस में M इज इक्वल टू 0 होगा. जब L इज इक्वल टू 1 है उस केस में M की वैल्यूज -1, 0 एंड +1 होंगी. और जब L इज इक्वल टू 2 होगा तो उस केस में M की वैल्यूज -2, -1, 0, +1 एंड +2 होंगे. Part 2. And list the quantum numbers M and L of electrons for 3D orbitals. यानी 3D ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए हमने M मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज एंड L यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज फाइंड करनी है. अब ऑर्बिटल कौन सा है 3D, और 3D ऑर्बिटल के लिए सबसे पहले शेल कौन सा होगा, यानी N की वैल्यू कौन सी होगी 3 होगी. और D ऑर्बिटल है तो ऑब्वियसली D ऑर्बिटल कौन से सबशेल में लाइक करेगा, वो D सबशेल में ही प्रेजेंट होगा. तो हमें दो चीजें पता है, एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और दूसरा हमें यह पता है कि वो कौन सा सबशेल है, यानी D सबशेल है. और हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि L की वैल्यू से सबशेल का पता चलता है. तो अगर सबशेल हमारे पास D है तो इसका मतलब L इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, क्योंकि L इज इक्वल टू 0 के लिए S सबशेल होता है, L इज इक्वल टू 1 के लिए P होता है, L इज इक्वल टू 2 के लिए ही D सबशेल होता है. तो इसका मतलब N आपके पास 3 है और L इज इक्वल टू किसके इक्वल है 2 के इक्वल है. और M की वैल्यू L की वैल्यू पे डिपेंड करती हैं, यानी M की वैल्यू -2 से +2 की वैल्यूज होंगी.
यानी -2 -1 0 +1 एंड +2. पार्ट थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल? 1p 2s 2p एंड 3f. इनमें से कौन से ऑर्बिटल्स पॉसिबल है? सबसे पहले 1p. अब 1p से हमारा क्या मतलब है? 1p से हमारा ये मतलब है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है और जो p है वो हमारा सबशेल है, और हमें पता है कि p सबशेल कब होता है? जब l की वैल्यू 1 है, और हमें पता है कि l की वैल्यू n की वैल्यू पे डिपेंड करती है, और l की वैल्यू n-1 के इक्वल होती है, यानी 0 से लेके n-1 के इक्वल होती है. तो जब n इज इक्वल टू 1 होगा तो l की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 0 के इक्वल होगी, और 0 आपका s सबशेल होता है, यानी 1p पॉसिबल नहीं है. केस 2 2p. अब 2p का मतलब n इज इक्वल टू 2 है, और n इज इक्वल टू 2 के लिए l की दो वैल्यूज पॉसिबल है, एक तो 0 दूसरी 1. 0 के लिए s सबशेल होता है और 1 के लिए p होता है, यानी 2p पॉसिबल है. केस थर्ड 3f. 3f के लिए n की वैल्यू 3 है, और n की वैल्यू अगर 3 हो तो l की हमारे पास 3 वैल्यूज पॉसिबल होती हैं, 0 1 एंड 2. 0 मीन s, 1 मीन p एंड 2 मीन्स d. तो इस केस में सिर्फ आपके पास s, p एंड d ऑर्बिटल्स ही पॉसिबल हैं, तो 3f जो है वो पॉसिबल नहीं है, वो फॉर्म नहीं हो सकता. शेप ऑफ ऑर्बिटल्स. तो डिफरेंट ऑर्बिटल्स की शेप्स कैसी होती हैं? सबसे पहले 1s ऑर्बिटल. ये स्फेरिकल शेप का होता है, और इस स्फेरिकल शेप में क्योंकि ऑर्बिटल हमारा उस रीजन को रिप्रेजेंट करता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, तो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम बाहर की तरफ को जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाती है. नंबर 2 2s ऑर्बिटल. 2s ऑर्बिटल भी आपका स्फेरिकल होगा, लेकिन ये 1s ऑर्बिटल से कैसे डिफरेंट होगा? पहला केस, एक तो ये 1s ऑर्बिटल से बड़ा होगा, एंड दूसरा केस इसमें एक नोडल प्लेन प्रेजेंट होगा. अब नोडल प्लेन किसे कहते हैं? नोडल प्लेन हम उस रीजन को कहते हैं जहां पर साई स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, यानी इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है. अब इस केस में जो हम देखेंगे स्ट्रक्चर वो कैसा है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के राउंड आपके पास एक फर्स्ट ऑफ ऑल केस है शेडेड रीजन. ये शेडेड रीजन रिप्रेजेंट करेगा 1s ऑर्बिटल को, और इसके बाद एक नोडल प्लेन है, यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें नहीं मिलेगी, इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, और उसके बाद अनदर शेडेड रीजन स्टार्ट होगा जो रिप्रेजेंट करेगा सेकंड ऑर्बिटल को, यानी 2s ऑर्बिटल को. नेक्स्ट इज p ऑर्बिटल्स. नाउ p ऑर्बिटल्स दे आर नॉट स्फेरिकल बट दे आर लाइक डम्बल शेप्ड. एक डम्बल शेप की तरह होती हैं जिसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होती हैं, एंड दीज लोब्स दे मे बी प्रेजेंट अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस. सो अगर ये 2 लोब्स x एक्सिस के लॉन्ग प्रेजेंट होती हैं तो उस ऑर्बिटल को हम कहते हैं 2px ऑर्बिटल, एंड इफ दिस लोब्स दे आर प्रेजेंट अलोंग y एक्सिस देन दे आर नोन एज 2py ऑर्बिटल्स, एंड सिमिलरली if the lobes are present along z axis then that orbital is known as 2pz orbital. Now there are 5 d orbitals which are designated as dxy, dxz, dyz, dx square minus y square and dz square. Now all the 5 orbitals they are not identical in shape, क्योंकि पांचों की शेप एक जैसी नहीं है. 4 of the d orbitals contain 4 lobes while 5th orbital contain only 2 lobes. यानी जो 4 ऑर्बिटल्स है उनके पास टोटल 4 लोब्स है, और सिर्फ जो एक ऑर्बिटल है उसके पास 2 लोब्स प्रेजेंट है, और लोब्स की पोजीशनिंग से हमें उनका नाम का पता चलता है. फॉर एग्जांपल, जिस केस में जो लोब्स हैं अगर वो लोब्स x और y ऑर्बिटल्स के बीच में लाई करती हैं तो उस पर्टिकुलर d ऑर्बिटल को हम कहते हैं dxy. यानी dxy के अंदर जो लोब्स हैं they are lying between x and y axis. Similarly in dxz orbital lobes are lying between x and z or axis, and in dyz case lobes are lying between y axis and z axis, and in case of dx square minus y square these lobes they are lying on x axis and y axis. Last case, that is dz square cases. In this case the lobes they are lying along z axis and contains a ring of negative charge surrounding the nucleus in xy plane.
यानी जो लोब्स हैं वो जेड एक्सिस के लॉन्ग प्रेजेंट है, और इनके सेंटर में एक जो नेगेटिव चार्ज की एक रिंग होती है जो एक्स वाई प्लेन के लॉन्ग प्रेजेंट होती है।